Hello and a very good evening to all my dear students. Dear students, today we'll start a new topic that is ordinal utility analysis. आज हम क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे. We have already discussed about the cardinal utility analysis, that is the गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत. In it we have studied two theories, that is the law of diminishing marginal utility and the law of equimarginal utility. हमने क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत के अंतर्गत सीमांत उपयोगिता हासमान नियम एवं सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ा. आज हम उपयोगिता के सिद्धांत के अधिक विस्तृत रूप के बारे में पढ़ेंगे, which has been given by J.R. Hicks and Allen. So let us all start. Before understanding and delving into the details of the theory, we need to understand a few of the assumptions. And this theory of ordinal utility is very famously known as the theory of indifference curve. क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत को व्यापक रूप से तटस्था वक्र सिद्धांत भी कहा गया है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन J.R. हिक्स एवं एलन नामक अर्थशास्त्री द्वारा किया गया. The assumptions are rational consumer. Hicks and Allen have assumed that the consumer behaves rationally while making choices for the consumption of different goods. The second assumption comprises of ordinal utility. That is, we cannot measure the utility in terms of utils. We only can compare the utilities derived from different commodities. हम उपयोगिता का गणना या उपयोगिता की गणना नहीं कर सकते, केवल हम विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिताओं की सापेक्षिक तुलना कर सकते हैं. We can only compare the utilities derived. We cannot count them or we cannot quantify them in terms of utils. The third assumption is non-satiety. That is, more is preferred to less. It means unsatiable human wants, the wants which are not satisfied. तो यहाँ पर उपभोक्ता की प्रवृत्ति हमेशा क्या रहेगी? He would like to prefer more commodities than to have less of them. Then the diminishing marginal rate of substitution. The very important point to be taken into consideration here is the MRS. यहाँ पर बेहद important point जो ध्यान में रखना है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में. इसे कॉमनली MRS कहा जाता है और अगर हम इसे हिंदी में परिभाषित करें या इसे शाब्दिक रूप दें तो हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, प्रतिस्थापन की सीमांत दर से क्या समझ में आया आपको? The rate of sacrificing one commodity to have the one additional unit of the other commodity. किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी वस्तु का त्याग. ठीक है, ये हमेशा डिमिनिशिंग होगी यहाँ पर, अर्थात गिरती हुई प्राप्त होगी. ये सारी चीज़ें आपको टेबल और डायग्राम के रूप में जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तब आपको क्लियर समझ में आएगा. बट हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ वेरी फेमस एंड a very important assumption of the ordinal utility analysis. Then the fifth assumption is the assumption of consistency. If a consumer prefer A to B in one period, then he will not prefer B to A in another period. Here, what does we understand about the assumption of consistency is that if a consumer has shown preference for one commodity in one period of time, he will continue showing the preference for the same commodity in the later period also. ठीक है, क्या समझ में आया? यहाँ पर हम कह रहे हैं कंसिस्टेंसी मतलब सततता कह सकते हैं. सस्टेनेबिलिटी इज डिफरेंट बट वी कैन से कंटिन्यूटी. ओके, उपभोक्ता ने अगर किसी वस्तु के लिए प्रेफरेंस अर्थात झुकाव या उस वस्तु के तरफ प्रेफरेंस दिखाना शुरू किया तो वो कंटिन्यूअसली
आने वाले पीरियड्स में भी उसी कमोडिटी के लिए अपनी प्रेफरेंस या अपने झुकाव को, अपनी प्रवृत्ति को कंटिन्यू करेगा डिमांड के रूप में. देन we are having the assumption of transitivity. If a consumer prefer A to B and B to C, then he must prefer A to C. It is a very common assumption of maths, that is transitivity. If A is equals to B and B is equals to C, then we can derive that A is also equals to C. Okay, ये आपको मैं अभी फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व जब हम करेंगे तब हम ज़्यादा सही तरीके से इसे समझ पाएंगे. तो आप मान्यताओं को ध्यान से पॉइंट वाइज रिवाइज कीजिए और इन्हें समझिए. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडिफरेंस कर्व? हम तटस्था वक्र से क्या समझते हैं? तटस्था वक्र या अनधिमान वक्र से क्या तात्पर्य है, इसका मीनिंग क्या है और ये कैसे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में या इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करता है. An indifference curve is the locus of all those combination of two goods which give the same level of satisfaction to the consumer. Very basic, बहुत सरल रूप में अगर हम इसे परिभाषित करें तो हम कहेंगे तटस्था वक्र उन सभी बिंदुओं का लोकस है या पॉइंट है जहाँ पर उन सभी हम कहेंगे दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों का, उपभोक्ता द्वारा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का लोकस पॉइंट है जिनके उपभोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है. Here in the analysis we are taking and we are assuming that consumer is purchasing two commodities. हमने यहाँ पर ये माना है कि उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है एक समय में. ओके, सपोज गुड X एंड गुड Y. हम दो वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अध्ययन करेंगे और वी विल ट्राई टू एनालाइज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विच अ कंज्यूमर इज डिराइविंग बाय कंज्यूमिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स. ठीक है, और यहाँ यह माना गया है कि तटस्था वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होने वाले संतुष्टि का स्तर क्या होगा? समान होगा. What we are assuming here and what we are declaring here is that the consumer is getting the same level of satisfaction from both the commodities at any point on the indifference curve. तटस्था वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को अगर हम पॉइंट आउट करते हैं और इसे ड्रॉ करेंगे तो हम ये मानेंगे कि वह उसे समान संतुष्टि का स्तर प्रदान करता है. Thus, consumer is indifferent towards all the combinations lying on the same indifference curve. और इसीलिए उपभोक्ता क्या है? तटस्थ है. He is not been able to specify a single point of maximizing his level of satisfaction. वो उन्हीं सारे बिंदुओं पर, मान लीजिए 5 पॉइंट्स हम बनाएंगे अभी टेबल की सहायता से, तो पॉइंट A, पॉइंट B, चाहे पॉइंट C या पॉइंट D या E, कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वो सारे पॉइंट्स उसे समान संतुष्टि का स्तर प्रदान कर रहे हैं और इसलिए ही उपभोक्ता क्या है? इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स ऑल दीज पॉइंट्स. वो तटस्थ है और कंपेयर कर सकता है सिर्फ. ओके, ही कैन नॉट derive the satisfaction in terms of utils or utility in terms of the quantified terms. Okay, he can only compare his level of satisfactions. In other words, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या है? कंज्यूमर गिव्स इक्वल प्रेफरेंस टू ऑल सच कॉम्बिनेशंस. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता इन सभी प्रकार के संयोगों को समान प्रेफरेंस देता है. Now we'll try to draw an indifference curve. हम एक तटस्थ वक्र बनाने का प्रयत्न करेंगे. First of all, we will make a table जहाँ पर हम 5 combinations लेंगे and this table will be showing different combinations giving equal satisfaction. ये जो तालिका हम बनाएंगे, ये तालिका विभिन्न संयोगों को दर्शाएगी जो कि समान संतुष्टि का स्तर प्रदान करेंगे. Here we are having 2 commodities, that is, suppose
apples and oranges. We have taken two goods, two commodities. हमने दो वस्तुएं यहाँ पे ली, एप्पल और ऑरेंज. ओके, और कंज्यूमर को हमने क्या माना कि वो इन दोनों कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करना चाहता है, साइमल्टेनियस कंजम्पशन. अब वो कौन से पॉइंट पे कंजम्पशन करेगा वो हमें देखना होगा एक टेबल के फॉर्म में. तो हमने यहाँ पे लिया है सपोज कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन पे आप देखेंगे कि द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 22 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस. ओके, ये रैंडमली आप बना सकते हैं. दिस नो स्पेसिफिक नीड टू मेक इट, बट इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि अभी मैं नेक्स्ट जो डायग्राम जो टेबल दिखाऊंगी उसमें MRS जो है बच्चों वो गिरता हुआ आना चाहिए, वो डिमिनिशिंग आना चाहिए. अब MRS बताया मैंने आपको अभी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर. वो अभी हम देखेंगे कि वो कैसे गिरता हुआ आएगा, और इसकी भी एक पूरा अलग से एनालिसिस है कि जब इंडिफरेंस कर्व होता ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इट विल स्लोप डाउनवर्ड्स ओनली. जब स्लोप डाउनवर्ड करेगा मतलब कि एक्स की एक कमोडिटी एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर धीरे धीरे वाई की कम से कम यूनिट्स को सैक्रिफाइस करेगा. ओके, पहले ज़्यादा सैक्रिफाइस करेगा, फिर फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ commodity X, the consumer would like to sacrifice lesser and lesser quantities of commodity Y. ठीक है, अब यहाँ पे आप पॉइंट बी देख लीजिए, 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल 14 ऑरेंजेस. फिर सी पॉइंट पे देखिए 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल 10 ऑरेंजेस. फिर डी पे देखिए 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल 8 ऑरेंजेस. ई पर 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल 7 ऑरेंजेस. अब इन्हीं पॉइंट्स को हम एक्स और वाई एक्सेस पे ड्रॉ करेंगे. एक्स एक्सेस पे हमने गुड एक्स लिया है, जैसे मैंने एप्पल को डिनोट किया है, और वाई एक्सेस पर हमने गुड वाई को लिया है, जो है ऑरेंज यहाँ पर. ओके, तो आप देखिए ए बी सी डी एंड ई 5 पॉइंट्स बनाएंगे दोनों के कोऑर्डिनेट्स लेकर के, और फ्री हैंड से आप एक कर्व को ड्रॉ कीजिए. अब आपको कैसा कर्व मिलेगा वो अपन इसके फीचर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, सो let us all move to the next slide. Yes, this was the curve which we have got by joining all the 5 combinations. ये आपका indifference curve है which is sloping downwards and it is negatively sloped also. ये negatively sloped है. Okay, then अब हमें जो बहुत important चीज़ यहाँ पे समझना है, that is the marginal rate of substitution. Okay, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, which will form the basis for the whole analysis of indifference curve. इसे समझना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आधार है तटस्था वक्र एनालिसिस का, विश्लेषण का. देखिए, the marginal rate of substitution of x for y is defined as the amount of y the consumer is just willing to give up to get 1 more unit of x and maintain the same level of satisfaction. अगर न्यूमेरिकल या फॉर्मूला वाइज इसे हम देखें, इट विल बी MRS एक्स वाई विल बी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई एंड डेल्टा एक्स विल बी चेंज इन एक्स. तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हम जब करेंगे तो अब ये ध्यान रखना है, ही इज फोरगोइंग द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी वाई टू हैव और टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स. ओके, तो इसलिए डेल्टा वाई का मीन क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी. MRS एक्स वाई विल बी डिनोटेड बाय अ नेगेटिव साइन. दैट मीन्स जो भी मैंने बताया, वाई वस्तु की कम से कम इकाइयों का त्याग करेगा एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के लिए. ओके, और इससे क्या होगा, संतुष्टि का स्तर में कोई चेंज नहीं आएगा. The level of satisfaction will remain the same. फिर वही बताया यहाँ पे, diminishing क्यों होती है marginal rate of substitution. As the consumer increases the consumption of apples, then for getting every additional unit of apples, he will give up less and less of oranges. That is 8:1, 4:1, 2:1, and 1:1 respectively. This is the law of diminishing MRS. Okay. MRS is measured by the slope of the indifference curve. Very basic. देखो, every curve is having a slope. ठीक है, जैसे हमने टोटल यूटिलिटी पढ़ा था लास्ट क्लास में, कुल उपयोगिता.
Marginal utility is the slope, or we can say the rate of change of total utility, right? सीमांत उपयोगिता ही कुल उपयोगिता के परिवर्तन की दर है। तो यहाँ पर तटस्थ वक्र का अगर कोई स्लोप पूछे आपसे, ढाल पूछे, तो हम क्या कहेंगे? MRS XY is the slope of indifference curve. Okay, it is the rate of change of the consumption of both the commodities. और नेगेटिवली स्लोप्ड होता ही है, इसलिए MRS XY नेगेटिव होता है, और MRS XY ही ढाल होता है तटस्थ वक्र का, जिसे न्यूमेरिकली हम कहें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ग्रेजुअली देखिए, ये पहले 8 था, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, और लास्ट में 1 होके वो डिमिनिश होता रहेगा, गिरता रहेगा। देन नाउ what we will do is we will study about the properties of indifference curve. हम तटस्थ वक्र के विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। I would like you to understand the properties of the indifference curve in the next video. You just go through all the definitions of indifference curve, the definition of marginal rate of substitution, and the origin of the theory of ordinal utility analysis. Okay, I hope you guys have understood it. I will provide you the Hindi medium notes in PDF form. Thank you so much.